let's start class now. This is second class for third unit. Okay, so at the previous class we have discussed about what, क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किए थे ना? हेलो, फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन f dy equals to x. Just we had already learned about what, how can we find the complementary function, that is complete solution of f dy equals to 0. Now particular integral, that is main part. See here, one question is given here. Main target is our now what, finding particular integral. So see what is the method, one by one, because particular integral is main part for the solution, because there are different type of methods for finding particular integral. So the complete solution of, generally the complete solution of fd, complete solution of f dy equals to x is given by, here right hand side having some value, function of x, so its complete solution is given by y equals to complementary function plus particular integral. This is the method for finding complete solution of a higher order differential equation. Higher order differential equation in the sense fd means what, polynomial in D. Okay, and CF is what, complete solution of f dy equals to 0. And we know how can we find it, because fd को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके रूट्स निकाल के फिर CF लिखते हैं. Okay, so CF, to find CF, take f dy equals to 0 and find the value of roots, and then you can write the CF, particular integral, where CF is complementary function which is complete solution of f dy equals to 0, f dy equals to 0, and pi equals to particular integral of f d y equals to x. Its particular integral. Particular integral means its solution, one of the solution which will contain no constant. जो particular integral होता है ना, f dy equals to x, इसमें constant नहीं होता है. That is the value of y which will satisfy this equation. जब y की वैल्यू रखेंगे ना तो satisfy होगा. Taking right hand side x, उसको particular integral बोलते हैं, और इस particular integral को निकालना है. You know complementary function तो हम निकाल सकते हैं. f dy equals to 0, रूट निकालो, और राइटिंग मेथड यू नो, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया. ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी एक्स, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये होता है पी आई 1 by एफ डी. व्हाट इज एफ डी? एफ डी एज ए पोलिनोमियल, बिकॉज डी में पोलिनोमियल होता है एफ डी. जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तो एफ डी को ब्रेकिंग करते हैं फैक्टर में, सो फैक्टराइज हो जाता है. पहले जैसे सीएफ निकालते हैं तो फैक्टराइज ऑलरेडी हो जाता है. सो 1 अपॉन एफ डी, दिस इज आल्सो ए फैक्टर, ट्रीट एज ए फैक्टर, सॉरी ऑपरेटर. ये ऑपरेट होता है किसके ऊपर? एक्स के ऊपर. एंड इसकी वैल्यू फाइंड करने का क्या टेक्निक है? सो पूरे यूनिट में यही है अभी, पी आई फाइंड करना. समझ में आया कि नहीं? हेलो, क्या बोल रहा हूं? पी आई निकालना ही है अभी. सो पी आई निकालने का जो टेक्निक है, so general rule and there are some particular
फॉर्मेट, मतलब कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है, मीन्स एक्स की कुछ वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू, उस वैल्यू पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट आता है. सो जनरल वैल्यू वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू को कैसे निकालना है. क्लियर है? सीएफ तो निकल जाएगा, पहले किए थे वही है, मेन पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट अभी पढ़ना है. ओके, सो हियर सी पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स व्हाट इज डी? एनीवन टेल मी, डी इज व्हाट? डी मीन्स क्या होता है? हेलो, particular integral 1 upon fd x. Okay, d is what? d मतलब क्या होता है? d by dx. डिफरेंशियल ऑपरेटर. d means डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, d by dx. ओके, अब इस को सॉल्व करना है. दिस इज फंक्शन ऑफ x. नाउ किस टाइप का फंक्शन है? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ x? एंड आल्सो जनरल रूल, फर्स्ट टू जनरल रूल इज देयर. जनरल रूल मीन्स सपोज ये जो fd है, ये fd जो होता है, ये क्या है? फंक्शन ऑफ d. मे बी लीनियर फंक्शन, मे बी क्वाड्रेटिक polynomial, may be cubic polynomial, may be 4 degree polynomial. Just you have already seen in the at the time of finding complementary function. So complementary function find करते समय देख चुके हैं ना कैसा होता है वैल्यू fd की. अब सपोज ओनली d है, मे बी ओनली d भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगा? वन बाय वन टेक्निक समझना है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड होगा. ये फंक्शन ऑफ x है, sin x, cos x and x, x square, e to the power x, log x, maybe anything. इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x. And if fd equals to d, then if fd equals to d, then pi की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? then मीन्स fd की जगह पे वैल्यू रख देना है. so pi equals to 1 by fd के प्लस पे क्या आएगा? d आएगा. If fd equals to d, simple d, 1 upon fd equals to d, suppose, then 1 upon d x, and 1 upon d inverse of this operation. डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑपरेशन, हेलो, इंटीग्रेशन हो जाएगा. x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करना, सॉल्व हो जाएगा. x का फंक्शन है, अगर fd की वैल्यू d हुआ तो 1 by dx मींस इंटीग्रेशन. क्लियर? अब सपोज d स्क्वायर है, ओनली d स्क्वायर, देन d स्क्वायर होगा. ठीक है, तो दो बार इंटीग्रेशन होगा. एक 1 by d ये है और एक 1 by d को इंटीग्रेशन बना दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस इंटीग्रेशन, फिर वो x का फंक्शन रहेगा, फिर एक बार इंटीग्रेशन कर देना है, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x dx of dx. d क्यू रहेगा तो 3 बार इंटीग्रेशन होगा. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ pi. इंटीग्रेशन कर देना है x का, किसी भी फॉर्मेट में हो. तो अगर fd हुआ तो सिंगल d आया मीन्स 1 by d मीन्स इंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज फर्स्ट रूल. नाउ मे बी the fd equals to not like this because ये linear था, 1 डिग्री का था polynomial, but मे बी जनरल polynomial ऐसा भी हो सकता है कि 2d plus 3, ये भी हो सकता है, या d plus 1, d minus 1, कुछ भी. so जनरल वैल्यू सपोज जनरल वैल्यू मीन्स ad plus b, जैसे हम लोग लिखते हैं ना लीनियर फैक्टर ax plus b, लीनियर फैक्टर, दिस इज लीनियर फैक्टर इफ जनरल पॉइंट पे आता है वैल्यू. क्लियर है ना? जनरल फॉर्म में आता है. सो इन दैट केस वी कैन राइट, इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो वैल्यू है इस फॉर्मेट में लिखना है ऑलवेज, b माइनस अल्फा, फैक्टर लिखते हैं ना.
जैसे जब वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स निकालते हैं, सो d माइनस m1, d माइनस m2, d माइनस m3 एंड सो ऑन, ये तो ऐसे फैक्टर आता है। सो लीनियर फैक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस फॉर्मेट, d माइनस अल्फा फॉर्मेट। इसको अगर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए b को कॉमन लेना है, नो a कॉमन लेना है, ये कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, d माइनस माइनस b बाई a, इज इट राइट ना? हेलो, इसको लिखना कैसे है, d माइनस अल्फा फॉर्मेट है, यहां से a कॉमन लिया तो d प्लस b बाई a, d प्लस b बाई a, so you can write d minus this is alpha, so d minus alpha in this format you have to write first and then use general formula, because क्या होना है उस टाइम में, फैक्टराइजेशन। ये तो फॉर्मूला पहला था इंटीग्रेशन का, सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट, इफ दिस देन, ये जनरली ये लिख के बताया कि इस टाइप का होता है। अगर फैक्टर इफ एफ डी इक्वल्स टू, इस फैक्टर को अगर जनरली हम क्या लिखें, इस टाइप का फैक्टर हो, d माइनस अल्फा, इस टाइप का फैक्टर है, देन पी आई इक्वल्स टू, दिस इज जनरल रूल, note down, 1 upon d minus alpha x equals to e to the power alpha x integration x e to the power minus alpha x dx. Clear? This is general rule. Okay, this is the general rule for finding pi. ये फॉर्मूला ना ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। सो हियर लास्ट फॉर्मूला इज एन जनरल फॉर्मूला इज दिस ओनली, ओके, चलेगा, क्लियर है। अगर 1 बाई डी आया x तो इंटीग्रेशन ऑफ x, और 1 अपॉन डी माइनस ए आया तो क्या होगा, e टू द पावर ax इंटीग्रेशन x e टू द पावर माइनस ax dx। दिस इज जनरल रूल, 1 अपॉन डी माइनस ए फैक्टर अगर है और सामने फंक्शन ऑफ x है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगा ये माइनस ए माइनस अल्फा, यहां प्लस साइन लेना है, e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर ax, सेम सेम चीज दोनों, यहां पर प्लस लेना है, यहां पर माइनस लेना है, x रहेगा इंटीग्रेशन dx। दिस इज द जनरल रूल, वेरी वेरी जनरल रूल दिस, बिकॉज x का कोई भी फंक्शन हो x का, यही रूल फॉलो करना है, अगर ये सिंगल फैक्टर हुआ तो इस टाइप का। सो दो फॉर्मूला हुआ अभी, 1 बाई डी इंटीग्रेशन कर देना है, 1 बाई डी माइनस अल्फा आया तो ये वाला रूल फॉलो करना है। ना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का स्पेशल फॉर्मेट है, बिकॉज ये नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो x की जो वैल्यू है, मतलब राइट साइड में जो इक्वेशन का राइट साइड में जो x की वैल्यू होता है, उसके फॉर्मेट में डिपेंड करता है कि कौन सा रूल फॉलो करें। सो देयर आर सम स्पेशल फॉर्मेट 2 3 4, सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मेट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल वेरी इजीली। मींस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा x की वैल्यू क्या है, बिकॉज x इज ऑन द राइट हैंड साइड, x की वैल्यू मे बी x, मे बी x स्क्वायर, may be e to the power x, may be log x, may be sin x, and may be x into sin x, कुछ भी हो सकता है, x का फंक्शन है। सो फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। सो देयर आर 4-5 फॉर्मेट्स आर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 जनरल रूल, 1 by d integration, 1 by d minus alpha, this formula is used, these are the general rules. So here see, first of all, first format, if fd not x equals to, if x equals to, ये जो x की वैल्यू है e to the power ax है, then अभी मैंने क्या बताया कि x के स्पेशल फॉर्मेट में फॉर्मूला मिलेगा, अभी उस पर ध्यान देना है। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मेट, दैट इज x इक्वल टू e to the power x अगर है, ये कांस्टेंट है x, देन pi इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ pi, कैसे फाइंड करना है, ओके, देन pi इक्वल्स टू 1 अपॉन e to the power 1 upon fd e to the power
एक्स, बिकॉज एफ डी जो भी है अपने इक्वेशन का, एफ डी तो यहां रहेगा, सामने एक्स रहता है पी आई, सो यहां पर एक्स, सो इट्स वैल्यू इफ एक्स का जो फॉर्मेट है, यहां का जो फंक्शन, इसके सामने का जो फॉर्मेट है, अगर e टू द पावर एक्स है, जिसका वैल्यू डायरेक्ट यू कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन f of a e to the power x if f a is not equals to 0. सॉल्व हो गया, क्लियर है? इस रूल से भी फॉलो, इस रूल से भी कर सकते हैं, इस वाले रूल से, एफडी के इसके फॉर्मेट में डिपेंड करेगा, बट दिस इज ए स्पेशल फॉर्मूला, मीन्स यहां पर e to the power x है, तो एफ डी जो है डी के प्लस पे ए रखना है, अगर एफ ए की वैल्यू जीरो नहीं है, इफ नॉट जीरो देन यू कैन राइट 1 अपॉन एफ ए, सॉल्व, और सामने e to the power x एज इट इज रहेगा, इफ नॉट इक्वल्स टू जीरो देन जस्ट लाइक दिस, सपोज 1 अपॉन d माइनस 1 e to the power माइनस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, कैपिटल एक्स की वैल्यू ये है, सो इसकी वैल्यू क्या करना है, रूल क्या पता है कि फंक्शन ऑफ डी होना है e टू द पावर ए एक्स, ए मीन्स हियर -1, इस -1 को डी के प्लस पे रखना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इफ डी इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा यहां पर, डी के जगह पे -1, बिकॉज ए की वैल्यू -1 है, सो ये क्या वैल्यू हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन -1 e to the power -x, दिस इज नॉट जीरो, मीन्स 1 by -2 है, 1 by -2 to the power -x, हो गया, सॉल्व हो गया, दिस सॉल्व, क्लियर है? दिस इज द रूल फॉर इजी रूल है ये. नाउ इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, फेलर केस मीन्स यहां पर अगर ऐसा होता d + 1 होता, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज नाउ a इक्वल्स टू -1, इस -1 को यहां रखेंगे तो -1 + 1 0, तो नीचे 0 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड फेलर केस, फेल हो गया, नहीं रख सकते ये वाला रूल. इन द केस ऑफ फेलर केस रूल क्या है, यहां पर लिख रहा हूं, है ना, ध्यान देना, ये राइटिंग मेथड आना चाहिए, इफ एफ ए इक्वल्स टू 0 देन मीन्स जीरो नहीं है तो वो आंसर है, इफ एफ ए इक्वल्स टू 0 दिस इज फेलर केस, फेल हो गया था वो वाला फॉर्मूला, तो फेलर केस में क्या होगा, पी आई इक्वल्स टू 1 टाइम डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू डी, डी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, डी के रेस्पेक्ट में, एंड देन मल्टीप्लाई आल्सो बाय एक्स, एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डैश ए e to the power ax, if f dash a is not equals to 0. सब लोग ध्यान दे रहे हो? हेलो, यस सर, ये लिखना कैसे हो रहा है, देखो लिखना बस इसी से को यूज करना है बार बार, अगर जीरो नहीं है एफ ए, सीधा डी के जगह ये रखा, आंसर सॉल्व हो गया. अगर ये जीरो आया तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले एफ डी को एक बार डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करके फिर ए को रखना है, ए मीन्स वही वाला ये यहां रखना है, जैसे ये यहां पर सपोज 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर -4 और e to the power 2x. अब यहां पर अगर d2 को इस डी स्क्वायर की जगह पे रखें, डी के जगह पे रखें, तो नीचे क्या आएगा, हेलो, 0, नीचे 0 आएगा, तो फेलर केस हो गया. तो फेलर केस में क्या करते हैं, एक बार नीचे डिफरेंशिएट करो, और 1 टाइम डिफरेंशिएशन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1x, x से मल्टीप्लाई करना है, सो फेलर केस में x से मल्टीप्लाई करो और इसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे क्या होगा, नीचे डिफरेंशिएशन 2d, डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, 2d, यहां तो 0 हो जाएगा, ओके, और राइट साइड में क्या है, e to the power 2x. नाउ फिर पुट करके देखो, अभी पुट करके देखो 2,
यहां पर डी की जगह पे, तो अब जीरो नहीं आ रहा है, सो सॉल्व यू कैन राइट इट बिकॉज डेरिवेटिव के बाद रखा और जीरो नहीं है, सो दिस इज द आंसर. So x into, now we can write x upon 2 into 2, 4, x by 4 into the power 2x. This is answer. एक बार डिफरेंशिएट करके फिर रखना. क्लियर? इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा. अगेन सपोज दिस इज 0, तो क्या हो जाएगा फिर? एक बार और डिफरेंशिएट करना है और x और एक x और इंटू हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और 1 upon f डबल डैश ए. मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट के बाद ये रखने के बाद भी अगर जीरो नहीं है तो दिस इज आंसर. ये सेम रहेगा टू द पावर x इफ f डबल डैश ए इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर? सो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलना है तो ये सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली. अगर x की वैल्यू टू द पावर x फॉर्मेट का है तो डायरेक्ट, नहीं तो वेरी जनरल रूल यूज कर सकते हैं बट वो लेंथी प्रोसेस है. दिस इज अ स्पेशल फॉर्मेट, फर्स्ट स्पेशल फॉर्मेट टू द पावर x. ओके, सो यहां पर क्या है वही इफ f डैश a इक्वल्स टू 0 देन pi. स्टेप बाय स्टेप. अगर वो 0 नहीं है तो आंसर ये है, अगर 0 हो गया तो आंसर ये है. अगेन प्रोसीड कर सकते हो इसी फॉर्मेट में. सो इट इज क्लियर ना? e टू द पावर x फॉर्मेट होगा तो कैसे लिखना है pi? हेलो, यस सर. हाँ, अब सेकंड फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पर, सेकंड फॉर्मेट पर. सेकंड फॉर्मेट, बिफोर सेकंड फॉर्मेट सॉल्व दिस क्वेश्चन है जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, बिकॉज 3 फॉर्मेट आर देयर नाउ एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस वन बाय वन. बिकॉज पीआई निकालने का प्रैक्टिस होना चाहिए ना, सॉल्व करना है अच्छे से. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? पीआई निकालना है डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं बोला है, सीधा पीआई निकालना है. हाइपरबोलिक साइन x, यू नो हाइपरबोलिक साइन x इज इक्वल्स टू व्हाट? e टू द पावर x के फॉर्मेट में वैल्यू होता है कि नहीं, याद है? फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़े थे क्या? साइन x की वैल्यू e टू द पावर ix माइनस e टू द पावर माइनस ix by 2i, and this is hyperbolic sine e to the power x minus e to the power minus x by 2. ये फॉर्मूला पहले पढ़े हो? हेलो, हेलो, टेल मी, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो पहले? दिस इज सर्कुलर फंक्शन sin थीटा cos थीटा tan थीटा. इसमें जब वैल्यू लिखते हैं तो e टू द पावर आई लगाना पड़ता है, और जब हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस, इसकी जो वैल्यू होता है ना, इसकी जो वैल्यू है ये होता है, इसमें आई नहीं लगता. सो दिस इज द वैल्यू, सिंस दिस, इसको यूज कर लेते हैं. क्लियर है? और वो है सर्कुलर फंक्शन. We can use this formula for finding pi here. Pi means particular integral. So particular integral क्या होगा यहाँ पर? अभी हमने कौन सा रूल फॉलो किया? अभी कौन सा रूल सीखा? e to the power ax वाला. So यहाँ पर e to the power x वाला particular integral pi is equals to 1 by fd x. So we can write it. क्या लिखना है? fd के जगह पे fd के प्लस पे क्या लिखा हुआ है? हेलो, fd के प्लस पे क्या लिखा हुआ है? ब्लिंकिंग हो रहा है क्या आज स्क्रीन? हेलो, क्या? ओके, हेलो, बताओ. यस सर. क्वेश्चन दिया है, दिख रहा है? क्वेश्चन में fd के जगह पे क्या लिखा है ये पूछ रहा हूं. ये तो फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है. सो क्या लिखा है fd के प्लस पे? d प्लस 2 इंटू d माइनस 1 होल स्क्वायर, d माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ fd. ये तो फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा तो d की वैल्यू -2, d की वैल्यू 1 1, 3 रूट्स है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यू कैन राइट. बट
वी हैव टू फाइंड ओनली PI. सो PI निकालना है तो PI इक्वल्स टू 1/FD x इक्वल्स टू दिस. और x की जो वैल्यू है सामने क्या लिखा है, x की वैल्यू e टू द पावर -2x प्लस 2 हाइपरबोलिक साइन x. एक चीज ध्यान देना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट है ना, कंप्लीटली सभी जगह पे PI ही निकालना मेन है. CF तो निकालना सीख गए, वही रहेगा. फैक्टराइजेशन हुआ तो CF तुरंत लिख सकते हैं. PI निकालना है, इसके जो 7-8 रूल है, यूनिट खत्म. फिर नहीं, इसका एक पार्ट और है, लीजेंडरी एंड बेसल्स, उसको भी पढ़ना है, बट ये यूनिट थोड़ा सा लेंदी है, सेकेंड यूनिट छोटा था. ओके, सो ये देखो, ये x की वैल्यू है. अभी जो रूल पता है वो e टू द पावर x वाला रूल पता है, तो इसकी वैल्यू ये होता है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं e टू द पावर x के फॉर्मेट में. बिकॉज e टू द पावर x होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज e टू द पावर x वाला रूल पता है. सो साइन हाइपरबोलिक साइन x है, सो वहां पर ये यूज कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर्मूला. सो वी कैन राइट PI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/d + 2 d - 1 स्क्वायर. अब ये जो FD की वैल्यू है, दिस वैल्यू कैन बी एडजस्टेड एज यू लाइक. अभी फॉर्मूला बेस्ड है, जब चाहे तो इंटू करना पड़ सकता है, कभी भी फैक्टराइजेशन में भी करना पड़ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी. यू नो पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता है. पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? हेलो, पार्शियल फ्रैक्शन 1 by factor this is equals to 1 by a by this, b by this, c by this. इस टाइप से लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में. हेलो, यस सर. और सॉल्व करते हैं, ये 3 फैक्टर का इनटू रहता है तो अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. सो पार्शियल फ्रैक्शन भी कभी कभी करते हैं. वी कैन डू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन. तो क्या होगा, जैसे 3 फैक्टर है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और सभी पार्ट के सामने x आ जाएगा. 3 पार्ट्स रहेगा, 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है. यू कैन डू आल्सो पार्शियल फ्रैक्शन, बट ये जो स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करना है. सो सी हियर, हम यहाँ पर इसको इसके जगह ये यूज कर लेते हैं, बिकॉज e टू द पावर x वाला फॉर्मूला पता है हमको. सो हियर e टू द पावर -2x प्लस सी हाइपरबोलिक साइन x की जगह अगर ये रख दे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x. सो ऑल आर रिलेटेड टू e टू द पावर x, क्योंकि ये रखेंगे ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा. ओके, नाउ ये फैक्टर इसको इधर एज यू लाइक यू कैन डू, बिकॉज ये ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा. इसको इधर भी यूज कर सकते हैं, इसको इधर भी यूज कर सकते हैं, जिसको पहले इच्छा हो उसको यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में. ओके, नाउ सी हियर 1 2 3 सब में यहाँ -x है, यहाँ +x है, यहाँ -2x है, तो 3 पार्ट्स है. यहाँ पर इसको कलेक्ट तो कर नहीं सकते, 3 पार्ट्स है. वी नो फॉर्मूला ओनली विथ e टू द पावर ax, और यहाँ पर FD, d का फैक्टर, ये वाला फॉर्मूला पता है. सो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड. सो इसकी वैल्यू फाइंड करने का फर्स्ट टेक्निक क्या होगा? फर्स्ट टेक्निक इज दिस, एक ही लाइन में लिख देता हूँ ना, 1 बाई ये इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, इसके डिस्ट्रीब्यूट इट. ओके, सो d + 2 d - 1 स्क्वायर e to the power -2x. This is first part. 1 upon d plus 2 d minus 2 square d minus 1 square, sorry, d minus 1 square e to the power x plus 1 upon d plus 2 d minus 1 square e to the power minus x. So this is 3 parts. Now we can solve it one by one. So see here, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है. अभी जैसे इसको सॉल्व करना है, हम क्या रूल जानते हैं कि e टू द पावर x है, a की जगह जो है उस वैल्यू को यहाँ रखना है d के प्लस पे. अगर ये 0 ना हो तो रख सकते हैं. -2 अगर इस जगह पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा. ओके, अब 2 फैक्टर बना हुआ है, अगर एक फैक्टर के साथ करें, एक फैक्टर के साथ, क्लियर? अगर एक फैक्टर के साथ ऐसा करते हैं तो क्या होगा?
ओनली इस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ 0 होना है क्या? नहीं होना है ना, बिकॉज अभी क्या बताया था कि 1 बाई फैक्टर रहेगा किसी एक फैक्टर को, पहले यूज कर लेते हैं, फिर दूसरे फैक्टर को यूज कर सकते हैं। सो इनमें से जो जिस फैक्टर के साथ 0 नहीं आ रहा है उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें, बाद में दूसरे पार्ट को करेंगे। क्लियर है? सो सी हियर, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ये तो -2 यहाँ नहीं रखेंगे, ये फैक्टर में नहीं रखना है, इस फैक्टर में रखो इसको, 1 बाई दिस इज दिस। अब ये -2 इस d की जगह रखना है, तो क्या होगा यहाँ पर -2 एंड -1 -3 स्क्वायर 9, सो 1/9, और कांस्टेंट है इधर रखा, और ये फैक्टर बचा 1/d प्लस 2 e टू द पावर -2x। नाउ प्लस सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पर 1 है, सो 1 अगर यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 0 नहीं होगा। सो इस फैक्टर को यूज कर ले पहले, तो क्या क्या बन जाएगा ये 1/3 1/d - 1 e टू द पावर x प्लस यहाँ पर -1 यहाँ रखो, -1 यहाँ भी रखो, तो 0 होगा क्या? -1 -1 -2 -1 +2 +1, तो 0 नहीं हो रहा है, तो पूरे में रख देंगे। ओके, सो -1 रखो तो क्या होगा ये -1 + 2 1 -1 -2 स्क्वायर 4 1/4 1/4 e टू द पावर -x। सो ये तो सॉल्व हो गया डायरेक्ट, बिकॉज -1 रखा। हाँ यस, 1/4 के पैरेंट। हेलो, हाँ कहाँ, अच्छा दिस इज -1 ना, ओके। अब तुम लोग समझ में आया मेन थिंग क्या है, e टू द पावर x, अपना रूल जो है, रूल फॉलो करो, e टू द पावर x, इसके सामने d फैक्टर, तो d फंक्शन ऑफ d, इसके सामने फंक्शन ऑफ d, अब फंक्शन ऑफ d a को यहाँ रखना है, अगर 0 नहीं है तो यू कैन यूज इट। अगर यहाँ पर 1 2 3 फैक्टर है, तो जिस फैक्टर के साथ 0 नहीं है उस फैक्टर के साथ यूज करो, यही किया अभी हमने। ओके, सो इज इट क्लियर ना, ये क्लियर है कि नहीं? हेलो सर, मिडिल वाले में d - 1 स्क्वायर हुआ। हाँ, अच्छा ये सब, हाँ इस पे ध्यान देना है ना। ओके, स्क्वायर क्लियर है, रूल क्या है ये तो समझ में आ गया, जिस फैक्टर के साथ यूज करना है उस फैक्टर से यूज कर लिया। नाउ अब ये 1/9 आएगा, 1/3 आएगा, -1/4, ये तो सॉल्व हो गया लास्ट वाला। ये वाला देखते हैं बुक में क्या 1/1 किया है, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, इस टाइप से किया, और एक साथ चल रहा है। अब इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है, फेलर केस है, नीचे 0 आना मतलब फेलर केस। फेलर केस में क्या करते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला देख के आए थे। फेलर केस में एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, सो क्या हो जाएगा 1/9 x इंटू 1/, इसको d+2 है ना, d+2, सो d+2, एक बार डिफरेंशिएशन करो d के रेस्पेक्ट में, क्या होगा 1, और e टू द पावर -2x, 1 आ गया। अब यहां तो d है ही नहीं वैल्यू रखने के लिए, सॉल्व हो गया। क्लियर है, एक बार डिफरेंशिएट किया, फेलर केस था, ये हो गया, खत्म, सॉल्व हो गया। अब d है ही नहीं जो रखना है वैल्यू, 1 टाइम डिफरेंशिएट 1 आ गया, x का 1 इंटू हुआ, इधर 1/3, ये भी फेलर केस है, यहां 1 रखो तो 0 हो जा रहा है, सो एक बार डिफरेंशिएट करो, x का इंटू करना है, और एक बार डिफरेंस d - 1 का स्क्वायर, तो 2d - 1 आएगा, फिर फेलर केस है क्योंकि d - 1 रहेगा नीचे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, सो क्या वैल्यू आना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आया 2d - 1, और फिर से किया तो 2 × 1 आया, d - 1 का 1 2 आया, मीन्स x²/2, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 टाइम्स फेलर केस। क्लियर हुआ ना, x² 2 बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम तो ये मिला था 2d - 1, फिर फेलर बन गया था, फिर एक बार d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये 1 बन गया, तो 2 × 1 1 2 2,
तो नीचे 2 है, एक्स स्क्वायर 2 e टू द पावर x, ये हो गया, सॉल्व हो गया, और इधर भी सॉल्व हो गई, माइनस 1/4 e टू द पावर x। दिस इज ए स्पेशल फॉर्मेट, e टू द पावर x वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो नाउ दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको शॉर्ट में लिख देना है ना, ये x/9 e टू द पावर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बाई 3, नो 3 नॉट 6, x स्क्वायर बाई 6 e टू द पावर x माइनस 1/4 e टू द पावर माइनस x। दिस इज pi। देखो इस pi है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये pi निकल गया। क्लियर है? हेलो, pi निकला? यस सर। pi का जो इसका जो वैल्यू है x/9 x स्क्वायर बाई 6, x/9 x स्क्वायर बाई 6, ओके, एंड माइनस e टू द पावर, यहाँ पर प्लस क्यों दिया है? माइनस प्लस में, कहीं पर माइनस प्लस में डिस्टर्बेंस है क्या? देखो, यहाँ पर माइनस साइन शुरू से है ना, बुक में मिस्टेक है, ओके, दिस इज राइट ना। नाउ सेकंड रूल, सेकंड क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा कि सेकंड रूल किस टाइप का होता है। अब e टू द पावर x वाला है, sin टू x वाला है क्वेश्चन, ओके। सो नाउ सी, फर्स्ट रूल देख लिया, सेकंड रूल मीन्स x की जो वैल्यू है, यहाँ पर क्या है, 2 या 3 रूल बनाया है, उसी से हो जाता है मैं जनरली क्वेश्चन सॉल्व। सो सेकंड रूल, स्पेशल फॉर्मेट मीन्स इफ x इक्वल्स टू साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, ax प्लस b मीन्स लीनियर फैक्टर टाइप से लिखा हुआ है, sin ax प्लस b और cos ax प्लस b, sin हो सकता है cos भी हो सकता है, जैसे e टू द पावर x था, ये दिस इज सेकंड फॉर्मेट, इफ x इक्वल टू दिस, देन इसका फॉर्मूला लिखने का भी टेक्निक वही है, बट थोड़ा डिफरेंट है। इससे डिफरेंट ये है, आफ्टर डेरिवेशन यू कैन गेट ए फॉर्मूला फॉर दिस आल्सो, है ना, साइन लो चाहे कॉस लो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। ओके ना, नाउ राइट ना, हेलो, यस सर। सो वी कैन डिस्कस नाउ, है ना। सो क्या होगा, x इक्वल टू साइन x प्लस बी मीन्स स्पेशल फॉर्मेट है, दिस इज स्पेशल फॉर्मेट, ये मतलब ये साइन x प्लस बी कॉस x प्लस बी, a एंड b लीनियर फैक्टर मे बी साइन x ओनली, साइन x मीन्स क्या हो जाएगा, a के जगह 1 b के जगह 0, सो दिस इज जनरल फॉर्मेट, इस साइन में हो चाहे कॉस में हो। सो pi इक्वल्स टू 1/fd, 1/fd, यहाँ सपोज साइन ax लिया हमने, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगा, नाउ क्लियर ना, स्क्रीन अभी क्लियर है कि नहीं, हेलो, यस सर, क्लियर है ना। अब देखो, अगर साइन x की वैल्यू इस फॉर्मेट में हो तो 1/fd दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये देखना है, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, यहां पर एक चीज ध्यान दो पहले, fd मींस व्हाट, पॉलिनोमियल इन d, इसकी जो वैल्यू है d में 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी, 3 डिग्री का भी, 4 डिग्री का भी, कितने भी डिग्री का हो सकता है ये पॉलिनोमियल, ओके। सो साइन और कॉस के लिए जब सॉल्व करना है ना, तो इस fd की जो वैल्यू है पहले से फैक्टराइज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा, बट इसकी जो वैल्यू है d साइन और कॉस के लिए डी स्क्वायर के फॉर्म में होना है, उसको एडजस्ट करना है कैसे भी करके डी स्क्वायर के फॉर्मेट में। सो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, you have to replace by d square by minus a square provided not equals to 0, मीन्स fd में सपोज fd की वैल्यू है d square plus 2d plus 3,
एफ डी की अगर ये वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, देन यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है और डी एज इट इज रहेगा। जहां जहां डी स्क्वायर है वहां वहां माइनस ए स्क्वायर लिखना है। देन अगर ये जीरो ना हो, नीचे मतलब जीरो ना हो, देन यू कैन यूज इट। ओके, और डी स्क्वायर अगर नहीं है तो डी स्क्वायर बनाना है, जैसे करना होगा। सो दिस इज द रूल। इसमें भी वही e टू द पावर x टाइप का है, फेलर केस भी आता है। फेलर केस मींस लाइक दिस 1/fd लिखा हुआ है यहां पर, सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा ऐसे माइनस, यहां पर मैं डी स्क्वायर लिख रहा हूं, सी डी स्क्वायर मींस 1/fd है, बट डी स्क्वायर का फंक्शन मींस डी स्क्वायर के प्लस पे, कि हर जगह डी स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मे भी कहीं पर डी है, कहीं पर कांस्टेंट है, बट डी स्क्वायर के प्लस पे माइनस ए स्क्वायर रखना है और साइन एक्स प्लस बी रहेगा यहां पर। इफ एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब सपोज ये जीरो हो जाए, फेलर केस जीरो हो जा रहा है। इफ एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन सेम टेक्निक है जैसे उसमें होता था। ई में क्या करते थे, उसमें एक एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे डिफरेंशिएशन करना है। बट हियर सी 1/f(d) है, मे बी डी स्क्वायर डी क्यू कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर करना है। सो हियर इफ दिस मतलब फेल हो जाए केस, तो फिर वही टेक्निक है, x का इंटू करो ये 1/f डैश माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर के प्लस पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। डी स्क्वायर के प्लस पे माइनस, डिफरेंशिएशन करने के बाद विद रेस्पेक्ट टू डी एंड साइन एक्स प्लस बी। इफ यहां पर एक फर्स्ट डेरिवेटिव दिस नॉट इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली सेकेंडली सपोज दिस इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करना है और डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है एंड यू कैन प्रोसीड लाइक दिस। समझ में आया फॉर्मूला? हेलो, यस सर। अब दिख भी रहा है ना ठीक से? चलो इस ये फॉर्मूला है बिल्कुल e टू द पावर x टाइप का फॉर्मूला है। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है। कॉस लो चाहे साइन लो, सबके लिए सेम है। साइन कॉस रखेंगे तो ऑलवेज कॉस रहेगा, एज इट इज रहेगा, और कुछ नहीं करना है और सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एफडी क्या होगा, ये सेकंड रूल बताया हमने ना। यहां पर एफडी की वैल्यू, व्हाट इज एफडी? डी क्यू प्लस 4d ना, डी क्यू प्लस 4d। हियर पी आई इक्वल्स टू 1/dq प्लस 4d एंड dq plus 4d sin 2x, sin 2x वो इसी फॉर्मेट का है। sin 2x a equal to 2 है और b equal to 0 है। सो इन दिस फॉर्मेट नाउ इसकी वैल्यू लिखना है, राइट करना है। सो कैसे होगा अभी? सी अभी क्या बताया था कि इस फॉर्मेट में अगर e टू द पावर x होता तो वो जो e टू द पावर x वाला फॉर्मूला sin x प्लस b और cos x प्लस b अगर आया सामने, तो क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर डी क्यू है, डी है, यहाँ तो स्क्वायर हो नहीं सकता, यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/d इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d sin 2x। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, जस्ट यू हैव टू पुट डी स्क्वायर के प्लस पे माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो डी इंटू माइनस 2 स्क्वायर, डी स्क्वायर के प्लस पे माइनस ए स्क्वायर प्लस 4d। जीरो तो नहीं हुआ, सो रख दिया, यहाँ ये स्टेप आगे बढ़ गया। ओके, ना यहाँ क्या मिल रहा है, 4 माइनस 4 प्लस 4, ये जीरो हो रहा है ना। हेलो,
फेलर केस है क्या? फेलर केस है ना? Yes, sir. Yes, sir. डी D1. डी स्क्वायर की जगह पे क्या रख रहा हूं? माइनस टू स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d, तो फेलर केस है। ओके, फेलर केस में क्या करना पड़ेगा? हेलो, Differentiation, sir. डिफरेंशिएशन, x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन। अब डिफरेंशिएशन करते समय यहां पर ना जाके इधर जाओ, ये और ये तो सेम चीज है ना। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, तो क्या बनेगा यहां पर? 3d प्लस 4, 3d प्लस 4, x इंटू 3d प्लस 4 साइन 2x। फेलर केस ऐसे लिख देना है, फेलर केस। ओके, अब रख के देखो, हो रहा है नहीं हो रहा ना, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। 3 d² होगा ना, यहां पर d² होगा, d² 3d²। अब तो रख सकते हैं ना। अब d² की जगह क्या रखना है? माइनस 2²। Minus. सो क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 अपॉन 3 माइनस 2² प्लस 4 साइन 2x। सॉल्व हो गया। कितना वैल्यू आया? 4 5. Minus 5. 4 12 ये 12 हो रहा है ना, माइनस 12 प्लस 8 ना, x/8, Yes. x/8 ये ना, माइनस 12 है ना, Minus 8. Minus 8 होगा, sir. माइनस 8। ओके, माइनस 1 बाई माइनस x/8 साइन 2x। 1. दिस इज पी आई। बट फॉर्मूला जानना जरूरी है ना, कैसे लिखते हैं। साइन कॉस 10, साइन कॉस कुछ भी हो, 10 नहीं, साइन एंड कॉस दोनों में एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पर माइनस a² रखते जाएंगे, जहां जहां स्क्वायर क्यों था तो पहले रखने गया, नहीं हुआ, फेलर केस हो गया। फेलर केस हो गया तो एक x का इंटू किया, डिफरेंशिएट किया एंड देन फिर ट्राई किया रखने के लिए। फिर अगर रखा 0 नहीं आया, हो गया सॉल्व। फिर नहीं होता, फिर 0 आता तो एक बार और डिफरेंशिएट करते, और यही प्रोसेस फॉलो करते। तो दिस इज पी आई। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. हाँ, ये इसी स्टेप पे ना वैल्यू निकलेगा अभी। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सी ए प्लस पी आई वाला क्वेश्चन तो भी आने में टाइम लगेगा। माइनस इज बेटर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ तो समझ में आएगा कि अगला। अब 2 स्पेशल टाइप हुआ, दिस इज स्पेशल टाइप। also this is very very important because ये polynomial टाइप है ना, x to the power n। तो थर्ड फॉर्मूला, बिकॉज x का कोई भी कॉम्बिनेशन, कुछ भी कॉम्बिनेशन करना चाहो, क्या हो सकता है? x का पावर 2 3 4 5 मींस ये जो कैपिटल x की जो वैल्यू है उसके फॉर्मेट क्या क्या लिख सकते हैं? x² इन प्लस 2x साइन x प्लस e⁻x log x, कुछ भी मिला जुला के कुछ भी हो सकता है ना। सो 3-4 फॉर्मेट में लाके फिक्स कर दिया इसको। तो फिर एक थर्ड फॉर्मेट है ना, यहाँ पर थर्ड फॉर्मेट है इफ कैपिटल X इज इक्वल टू x टू द पावर m लिखा, मीन्स x टू द पावर समथिंग, देन x पावर समथिंग, x पावर समथिंग में से क्या है? m की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। सो x पावर 2, x पावर 1 मीन्स पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब, नो x² प्लस 7x प्लस 9, ये जो है x की पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 0 है। सो ये वाला फॉर्मूला, इसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है? अगर x टू द पावर समथिंग का एक का अगर पता चल जाए तो तीनों का हो जाएगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। So binomial theorem will be used. Binomial theorem, you know binomial theorem क्या वैल्यू होता है बताओ? ये नोट करो पहले जो मैं बता रहा हूँ अभी फॉर्मूला, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन जो लिखते हैं ना, 1 प्लस x पावर -1, दैट इज व्हाट? 1 अपॉन 1 प्लस x।
इक्वल्स टू 1 माइनस इक्वल्स टू, और ये 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, ये क्या है समझ में आ रहा है? ये x प्लस 1, मतलब अगर हमारे पास ऐसा फैक्टर रहे नीचे d प्लस 1, सपोज d प्लस 1 फैक्टर है अपने पास, नीचे d प्लस 1 फैक्टर है, तो इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाओ, 1 प्लस डी पावर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। मीन्स नीचे वाला फैक्टर को जो है ना, नीचे फैक्टर होना है d माइनस अल्फा, इसी टाइप का तो फैक्टर होता है। इस फैक्टर को 1 प्लस समथिंग और 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है। सपोज d माइनस अल्फा है, सो माइनस अल्फा कॉमन ले लो, माइनस अल्फा कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1 माइनस डी बाई अल्फा, 1 माइनस डी बाई अल्फा, सो 1 माइनस एक्स, इसको ऊपर उठा के लिखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1। सो ये फैक्टर तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते समय आता है, तो 1 अपन एफ डी के प्लस पे, ये एफ डी होता है, एफ डी के प्लस पे तो फैक्टर है, ये फैक्टर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस केस में जब ये इस टाइप का फॉर्मेट होगा, उस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए सब कर रहे हैं, बिकॉज नहीं तो उसका कोई टेक्निक नहीं है ना, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है, इस टाइप से इसको उठा के ऊपर लिख देना है, फिर इसको एक्सपैंड करना है, और सेकंड डिग्री है तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम 0 हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अगर ये किसी फैक्टर में अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस 2 आएगा, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। सो एनीवन कैन से व्हाट इज द फॉर्मूला, किसी को याद है? नहीं है क्या याद? बाइनोमियल एक्सपेंशन 11th क्लास में पढ़े होगे, NC0X। हाँ वो NC0 वाला जो है ना, सो लिसन अभी फटाफट बताते हैं ये क्या होता है ना। ये इस फॉर्मेट में लिखना मतलब वही है, इसकी जो वैल्यू है, सी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा, यहाँ माइनस सब प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस चलेगा, यहाँ माइनस है सब प्लस हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस एंड सो ऑन टू अप टू इंफिनिटी, ये होता है। एक्स पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सब लिख दो, और प्लस माइनस एंड सो ऑन, इसका फॉर्मूला। और इसके फॉर्मूला में यही चीज लिखना है, सब में प्लस लगाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये। और इन दोनों के लिए बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मूला है, ये जैसे प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है ना, ये जो फॉर्मूला लिख दिया, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लिखो, बट क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 से इंटू करो, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, मीन्स 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। दैट इज क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और सेम चीज यहाँ पर लिख देना है, दोनों में सब जगह प्लस होगा। सो दिस फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सब यूज करना है। सो बिल्कुल सब जगह प्लस, दिस आर द फॉर्मूला, याद रखना है ना, ये फॉर्मूला। अब हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पर x नहीं रहेगा, d रहेगा, कैपिटल D, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अब वो 2 तक रखना है, 3 तक रखना है, 4 तक रखना है, वो किस पर डिपेंड करता है। यहाँ जैसे d स्क्वायर है, मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन होना है। अगर x स्क्वायर वाला टर्म है, इससे ज्यादा पावर वाला नहीं है, तो d स्क्वायर तक रखने से हो जाता है, बिकॉज इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट आएगा, तीसरी बार में 0 आएगा, तो आगे सब 0 आएगा। सो इसके लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, नीचे वाले एफडी को ऊपर उठा के ये वाले फॉर्मूला में सेट करके बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो सामने ऐसा मिलेगा, और यहाँ रहेगा x टू द पावर 2 3 4 कुछ, इसको इस पे अप्लाई कर देना है और सॉल्व करना है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग अभी। ओके, सो थर्ड केस में क्या करना है, तो x टू द पावर समथिंग, सो हियर राइट हैंड साइड x हैविंग x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 है ना, यही वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करना है,
एक्स स्क्वायर ना, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4. Here fd means pi 1 upon fd. One upon fd and x मीन्स क्या आएगा fd की जगह पे बताओ, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ऑन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. ओके, सो क्या देख के ये x स्क्वायर x मीन्स x टू द पावर m फॉर्मेट का है. सो हमको क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जाना है. कौन से एक्सपेंशन में जाना है, बाइनोमियल. ये 1 प्लस समथिंग और 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है, इसको पूरा उठा के ऊपर ले जाना है, ऐसा करना है. सो इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस समथिंग लिखना है, मतलब 4 कॉमन लो, एक कॉमन 4, 1/4, 4 कॉमन लिया नीचे, यहां पर 4 को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 5d/4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और उसको ऊपर लिखेंगे फिर. सो क्या लिखना है, 1 प्लस 5/4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 x इनवर्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. ये मेथड समझना है, ये तो लॉन्ग आ गया, कभी कभी सिंगल फैक्टर भी आता है ना, ये सेकंड डिग्री फैक्टर आ गया, इसको फैक्टराइज नहीं किया, फैक्टराइज प्रॉब्लम भी आएगा फैक्टराइज में, है ना. सो इसको फैक्टराइज करना मुश्किल है, तो फिर क्या किया, सीधा इसी में से 4 कॉमन लिया, 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस ये आ गया, इस पूरे को सिंगल मान लेंगे, 1 प्लस दिस और -1 एक्सपेंड कर देंगे, और सामने ये रखा हुआ है. सेकेंड डिग्री तक ही रखना है फैक्टर. थर्ड डिग्री में जैसे डी आएगा ना, तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंड डिग्री तक लिखने से कंप्लीट है. सो इसको 1 प्लस ऑफ दिस, ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है अभी, 1 प्लस एक्स फॉर ये वाला फॉर्मूला, 1 प्लस ये पूरा x है, सपोज दिस इज कंप्लीटली x, सो 1 प्लस एक्स फॉर दिस 1/4. सो क्या होगा एक्सपेंशन, फर्स्ट वैल्यू क्या आना है, 1 माइनस ऑफ टोटल वैल्यू 5d अपॉन 4 माइनस ये माइनस है बिकॉज ये टोटल एक साथ है ना. सो 1 माइनस ऑफ दिस मीन्स ये डी स्क्वायर बाई 4 प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर. क्लियर है. सो फाइव डी अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और सामने ये रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. अब यहां पर ना डी स्क्वायर तक का लिख के रखना है, डी स्क्वायर तक का जो वैल्यू है. सी 1/4 बिकॉज वो सेकेंड डिग्री है, सो 1 आया माइनस 5d/4 आया, डी स्क्वायर बाई 4. जब ये प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, तो यहां पर डी स्क्वायर आएगा, 1 डी स्क्वायर इज हियर, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर में पावर 4 हो जाएगा. जब 2ab वाला फॉर्मूला में आएगा, जब दोनों इंटू होगा पावर 3 हो जाएगा. सो ओनली इसका स्क्वायर वाला पार्ट है अपने पास. ओके, सो यहां क्या लिखना है, -5d/4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4. यहां से एक पार्ट को ले लेते हैं, 5d/4 का स्क्वायर मीन्स 25d स्क्वायर बाई 16 मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो a स्क्वायर वाले पार्ट में ही d स्क्वायर है, तो d स्क्वायर वाले पार्ट को रखो, बाकी की मतलब नहीं है, बिकॉज थर्ड डिग्री में जैसे ही जाएगा वो सब 0 हो जाएगा डेरिवेटिव.
जैसे अप्लाई करेंगे। सो यहां तक लेके आगे ऐसा कर देना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ना 1/4 यहां पर क्या होना है, अभी इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 माइनस 5/4d, ये 25/16 माइनस 1/4। माइनस प्लस में कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो प्लस 21d स्क्वायर बाई 16, ये 16 आ गया ना, ये 25 माइनस 4 4 19 नो 21/16 ना, 29 बाई 21/16 ना, 45, yes sir, 21 21 ना, 29 21/16 sir, 21/16। ओके, सो 21/16 डी स्क्वायर एंड सो ऑन। बस अब सॉल्व हो गया, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा सेकंड डिग्री होने के कारण ज्यादा लंबा हो रहा है, कुछ नहीं। ओके, अब क्या करना है, 1/4 है या 1 है, ये इसको अप्लाई करना है। 1 के साथ आएगा, ये d के सामने आएगा, ये डी स्क्वायर के सामने आएगा। जब जैसे ये 1/4 है, 1 के सामने आया ये पूरा वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये 1 के साथ आया, माइनस 5/4 डी के सामने आया, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा वैल्यू, 2x प्लस 7, क्योंकि डी के सामने आया, डिफरेंशिएशन होना है तो कंप्लीट का, तो 2x प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहां पर आएगा तो दो बार डिफरेंशिएशन, प्लस 21 क्या था 16 ना, 16 डी स्क्वायर में दो बार डिफरेंशिएशन, इसका एक बार और 2 into 2 sir, इंटू 2, बस ये हो गया, खत्म हो गया। दिस इज पी आई। अब इसको सिंप्लीफाई करके रख लेना है। ओके, हो गया सॉल्व। सो टेक्निक क्या है समझ में आया ना, बायनोमियल को ऊपर उठाना है और एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन यूज। सो पी आई इक्वल्स टू, इन शॉर्ट, राइट। अब ये इसको सॉल्व कर लेना है, 16 21/8, ये सब कुछ करके देखो वैल्यू क्या फाइनली आंसर जो यू हैव टू कैलकुलेट एंड राइट इट। ओके, इसकी वैल्यू लिखो, बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना है, सिंपलीफाई करना सीखना है ना। बाकी ये आंसर हो गया, जो लिखा हमने वो आंसर आ गया है। यहाँ पर कहीं था ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। 1/4 21/16 डी स्क्वायर 20 माइनस 5/4। ओके, बिल्कुल राइट है। क्या होगा, कैलकुलेट करो। फाइनल 1/4 बाहर रख देते हैं, अंदर क्या आएगा, राइट है, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर तो सिंगल ही रहेगा ना, इसके साथ तो कुछ है नहीं। अब ये एक्स वाला क्वांटिटी यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, इन दोनों को सेट किया, 2 आया, 5/2, 7 माइनस 5/2, 7 माइनस 5/2 क्या होगा, 14 माइनस 5 फिर 9x/2 है क्या, 9x/2 है क्या। हेलो, देखो क्या हो रहा है, 9x/2 ना, और कैलकुलेट कर लिया फिर वहां 21/8 एंड 9 माइनस 35/4 प्लस 21/8, इस पूरे को कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू आ रहा है, 23/8। ओके, सो दिस इज नथिंग, सेटिंग है वो, मतलब कर लेना ना सेट। दिस इज पी आई। ओके, दिस इज थर्ड रूल। नाउ 25/4 23/8 है क्या, माइनस 35/4 माइनस 35/4 प्लस 21/8 एंड 9। ओके, 23/8 है ना। हेलो, कैलकुलेट किए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, उसको कैलकुलेट करके रख लेना है, बस इसी टाइप से है ना ये। दिस इज थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल इज हियर, सी फोर्थ
फोर्थ रूल क्या होना है? ये राइट है कि नहीं? तुम लोग किए हो कैलकुलेट? वो तो मैं बुक में देखा लिख दिया हूं। हेलो, इफ बाकी क्वांटिटी तो बिल्कुल राइट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। हेलो, राइट है ना? Yes, sir. ओके, सो नाउ फोर्थ रूल, सी हियर x की वैल्यू देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, सी द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा हूं इसको देखो क्या लिखा है, e to the power x into cos x, मतलब कंबाइन में है ना। सो देयर इज a रूल, ये जो रूल अभी बता रहा हूं ना, सी हियर, इफ a to the power ax into b where b is any function of x, any function of x, if in this format we are given value, अगर इस फॉर्मेट में गिवन है वैल्यू, ओके, सो क्या होना है pi, देन pi मीन्स क्या है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ऐसा लिख सकते हैं e to the power x into x square sin x into log x, ये भी हो सकता है, ये पूरा x का फंक्शन है, दिस इज कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x, कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x, सो ये हो सकता है v, ऐसा भी हो सकता है e to the power x 2x into sin x, e to the power 3x into cos x, सो उसी में से एक फॉर्मेट है इसमें e to the power x cos x, या v के प्लेस पे cos x है, सो यू कैन ट्रीट ये e to the power x वाले क्वांटिटी को हटा के बाकी सबको एज ए फंक्शन ऑफ x लेना है। सो इन दिस फॉर्मेट क्या होता है इसमें, 1 by fd e to the power ax v is equals to e to the power x को बाहर कर दो और जो fd है वहां d के प्लस पे d प्लस a कर दो और यहां v बन जाएगा। ये रूल याद रखना है, क्लियर है? दिस इज रूल ओनली, मीन्स e to the power ax into b, b is any function of x, 1 upon fd है, तो इसको जब सॉल्व करना है तो e to the power x जो भी है उसको आउटसाइड में ले लो, जैसे ये आउटसाइड में आया तो इसका जो पावर a है d में प्लस हो जाएगा, दिस इज द रूल, क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, ये तो बिल्कुल इजी है सॉल्यूशन। हियर वी हैव pi इक्वल्स टू, हो जाएगा, दो लाइन में हो जाएगा सॉल्व, बताओ pi इक्वल्स टू क्या है, 1 upon fd is equals to what, d square minus 2d plus 4 ना, d square minus 2d plus 4 गिवन है, d square minus 2d plus 4, बिकॉज कभी गिवन नहीं रहता है, जनरल क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो ऑटोमेटिक फैक्टराइजेशन हो जाता है, d के फॉर्म में लिख जाता है। सो d square minus 2d plus 4 fd equals to and e to the power x cos x, here we can treat cos x as v or e to the power x as e to the power ax, a means 1, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो fd, तो क्या करना है, d के प्लस पे 1, a यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, d के प्लस पे d प्लस 1 लिख देना है और e to the power x को बाहर कर देना है। सो e to the power x 1 upon, जहां d है वहां d प्लस 1 लिखना है, सो d प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 4 और सामने केवल cos x रहेगा, ठीक है? सो सॉल्व हो जाएगा एकदम इजीली ना, e to the power x तो बाहर आ गया ना, सो 1 अपॉन, इसको शॉर्ट करो, क्या पता है, ये d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, 2d प्लस में 2d माइनस में कैंसिल, सो d स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2, ओके, माइनस 2 डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या होगा वैल्यू, माइनस 2, यहां पर प्लस 1 है, यहां माइनस 2 है,
तो -1 हो जाएगा, -1 यहाँ से 3 आएगा बस। सो डी स्क्वायर प्लस 3 ना, हेलो यही है क्या, राइट है? यस सर। डी स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब cos, ये तो फॉर्मूला आ गया cos ax प्लस b का फॉर्मूला, cos ax प्लस b sin x प्लस b, cos ax प्लस b है, a मींस 1 b मींस 0, तो क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है और 0 नहीं होने से रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 स्क्वायर, तो -1 2 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, e टू द पावर x 1 अपॉन -1 स्क्वायर प्लस 3 cos x, हो गया, सॉल्व हो गया। सो 3 - 1, 3 - 1 मीन्स 2, तो e टू द पावर x by e टू द पावर x cos x by 2, so this is pi। ये e टू द पावर x, सर डी हाँ डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 स्क्वायर लिखना है। हेलो, कुछ डाउट है? सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। कहां पर, यहाँ स्क्वायर में? यस सर, यस सर। अभी तक तुम लोगों को डाउट है, ये लिखते हैं ये ए स्क्वायर, इसका मीनिंग समझ में आता है, -a का होल स्क्वायर थोड़ी है। हेलो, -4 होगा सर। माइनस, यस सर। कुछ मिस्टेक है? हेलो, यहां पर क्या बोल रहे, राइट है कि नहीं बताओ? ठीक है सर। -a स्क्वायर लिखना है ना, -a स्क्वायर, इस पे ध्यान देना है, -a स्क्वायर लिखना है। सो क्वेश्चन कौन सा था? -a के साथ नहीं है, a के साथ नहीं है ना, -a स्क्वायर, ओके। ब्रैकेट के बाहर है माइनस। ब्रैकेट कहां पर है? हाँ ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पर। सर वो ब्रैकेट मतलब a के साथ अगर लेंगे 1 मिनट, 1 मिनट में, ये क्वेश्चन कौन सा है कर रहे थे हम लोग अभी, x वाला ना, ओके आंसर देख लेता हूँ, हाँ राइट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये x/2 cos x, ये जो लिखते हैं इधर, इधर मैं क्या लिखा था, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -a स्क्वायर, समझ में आ रहा है? यस सर। जहां पर डी स्क्वायर है वहां पर -a स्क्वायर रखना है। -3 स्क्वायर में मीनिंग क्या है, -9, -2 स्क्वायर मीनिंग क्या है, -4, क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। ये है ये सब्स्टिट्यूशन, सो दिस इज द आंसर, ओके पी आई, इस क्वेश्चन का पी आई निकला, ओके। फोर्थ, नाउ फिफ्थ इज नथिंग, फिफ्थ इज व्हाट, जनरल रूल। ये 4 स्पेशल फॉर्मेट है, इसी से हो जाता है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसी से। और जनरल रूल इज व्हाट, यू नो जनरल पार्ट, यू नो फैक्टर, वही करते हैं ना हम लोग, 1/FD लिखते हैं, और FD क्या है, ऑलरेडी जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तो इसको तो फैक्टराइज कर ही लेते हैं हम लोग, तो यहाँ तो फैक्टर बन ही जाता है ना, नीचे अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर, सो यहाँ पर फंक्शन x लिखा रहता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, और डिफरेंट का आंसर भी आ जाता है कभी कभी, क्या है 1 दिस फैक्टर, 1 दिस फैक्टर, 3 फैक्टर हो गया, इनटू में अगर लिया तो फर्स्ट ये फैक्टर के साथ सॉल्व करो, और किसी ने पता चला पहले ये और ये लिया, सॉल्व किया, सो बिकॉज जनरल रूल क्या है, 1/d माइनस अल्फा x इक्वल्स टू व्हाट, e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस अल्फा x dx, दिस इज जनरल रूल, दिस इज जनरल रूल। एक फैक्टर होगा, फैक्टर तो इसी टाइप का होता है, d माइनस अल्फा टाइप का, और d माइनस अल्फा टाइप का फैक्टर होगा तो 1/d माइनस अल्फा x, एक फैक्टर के अलावा अगर सॉल्व करेंगे ये इंटीग्रेशन है, दिस इज जनरल रूल, अभी फर्स्ट टाइम बताया था। जब कोई भी फॉर्मेट सेट नहीं बढ़ता है तो इसको यूज करना है, तो ये फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा। अगर 2 फैक्टर है तो पहले ये वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखना है, फिर दूसरे फैक्टर के साथ यही फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज जनरल रूल। सो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो स्पेशल टाइप से हो जाता है, ओके। सो सी नाउ कितना हुआ, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं,
दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है ना, और सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, 5 मिनट का क्वेश्चन है। दिस कंप्लीटली सॉल्व, वी हैव टू कंप्लीट सॉल्व करना है, केवल पीआई नहीं निकालना है यहाँ पर, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीआई सीएफ एंड देन पीआई, सो यू कैन राइट ना सीएफ। सब लोग बताओ सीएफ क्या होगा, यहाँ तो दिया भी है, एकदम शॉर्ट करके दिया हुआ है। ये इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ओनली पीआई नहीं है। ओके, सो सी, अब तो क्लियर दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। ओके, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, ये पूरा इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको ऐसे लिखो, एफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स, वेयर एफ डी इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, एफ डी इक्वल्स टू डी के फॉर्म में लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 एंड x इक्वल्स टू x स्क्वायर e टू द पावर 2x sin 2x, 8x स्क्वायर e टू द पावर 2x sin 2x, ये तीन चीज मिक्स है, देखो यहाँ पर तीनों मिक्स है ना। The complete solution is given by y equals to CF plus PI, where CF is complete solution of f dy equals to 0. So here auxiliary equation is f d equals to 0, या डायरेक्ट लिखो, f d की वजह तो लिख दिया ना, क्या होना है, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। You can solve it, d equals to what, 2 आएगा ना, 2 माइनस d माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना ये, हेलो, तो CF क्या होगा, therefore CF equals to you can write ना CF क्या होगा, याद है, CF लिखना याद है ना, दो रियल रूट है, इक्वल है, CF equals to C1 plus C2x e to the power 2x ना, हेलो, ये होना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF equals to C1 plus C2x, बिकॉज दोनों इक्वल है, सो C1 plus C2 दो कांस्टेंट, C1 plus C2x e to the power 2x, दिस इज CF एंड PI, अब PI निकालना है यहाँ पर, PI equals to 1 upon FD x, ये आ गया सामने अभी, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 by FD, okay, so see here 1 upon FD means, अब फैक्टराइजेशन करके भी लिख सकते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो d माइनस 2 का होल स्क्वायर कर d माइनस, किसी भी फॉर्मेट में लिखो इसको, ये का इसका क्या मीनिंग है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, सो d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ये और ये सेम है दोनों, और x मींस 8x स्क्वायर e to the power 2x sin 2x, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 8 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, और e to the power 2x को भी बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेलो, रूल याद है, 8 तो कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड रखा, e to the power 2x, बाकी जो है वो भी है, ये फॉर्मूला होता है ना e to the power x वाला, वो जो फॉर्मूला है, यस सर, d plus e to the power x into b, ये फॉर्मूला है, सो e to the power x इसको माना हमने, e to the power 2x को e to the power x माना, और x स्क्वायर एंड sin 2x को भी सपोज किया, दोनों मिला के उसको भी सपोज किया, सो क्या हो जाएगा, e to the power 2x बाहर आ जाएगा,
इसमें से e टू द पावर 8 तो कांस्टेंट है और e टू द पावर 2s को बाहर किया तो d के जगह पे क्या आएगा d प्लस a मींस 2. So d plus 2. So here d plus 2 minus 2 square और ये बचेगा यहाँ x स्क्वायर साइन 2x. क्लियर है? ये हुआ. So pi अभी इसके आगे अभी pi क्या लिखना है? pi इक्वल्स टू 8 e to the power 2x. ये तो सॉल्व पार्ट है. राइट पार्ट में क्या है? 1 by d स्क्वायर मिल रहा है. 1 by d स्क्वायर. अब आप समझ गए हो क्या करना है अभी. 1 by d स्क्वायर है. 1 by d 2 बार इंटीग्रेशन, बस 2 बार इंटीग्रेशन करना है. बाई पार्ट्स करना है. यहाँ पर सॉल्व करना है ना. सो 8 e to the power 2x 1 by d इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर sin 2x dx. So 8 e to the power 2x 1 by d क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है. x स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस. ये है ना फर्स्ट पार्ट. बाई पार्ट्स कर रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन. इसको फर्स्ट लेते हैं ना क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार खत्म हो जाएगा. तीसरी बार में तो खत्म. सी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना. हेलो. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस. माइनस कॉस 2x by 2. सो माइनस x स्क्वायर कॉस 2x by 2 फर्स्ट पार्ट है. इंटीग्रेशन ऑफ 2x into minus cos 2x upon 2 dx ना. यही है ना. So this 8 e to the power 2x जितना शॉर्टकट में कर सको राइट होना चाहिए आंसर. जितने शॉर्ट में लिख सको. यहाँ भी इंटीग्रेशन करके एक बार में लिख दो सही हो जाए. ओके. सो 1 by d यहाँ पर ये है. उस इंटीग्रेशन को करना है ना. यहाँ पर ये लंबा जाएगा इंटीग्रेशन है ना. माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस 2x. नाउ 2 कैंसिल है. माइनस प्लस प्लस हो गया. इंटीग्रेशन होना है x कॉस 2x का. अगेन बाई पार्ट्स लगेगा वहां पर. अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ. देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया. ये x कॉस 2x है. x फर्स्ट फंक्शन है. सो x साइन 2x अपॉन 2 ये फर्स्ट पार्ट हो गया. प्लस साइन है. एंड देन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 हुआ. cos का साइन 2x by 2 हुआ ना. सो क्या होना है? माइनस 1 by 2. तो पहले वाला 2 है और साइन है. साइन का क्या होना है? माइनस होना है. प्लस होना है. 4 होना है. और cos 2x. ये राइट हुआ कि नहीं? हेलो. कहीं कुछ माइनस प्लस में हुआ? देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है. यहाँ पर बचता क्या है? ये x cos 2x बचता है ना. इसका फर्स्ट x इंटू कॉस का साइन 2x by 2 x साइन 2x by 2 ये हो गया. फिर नेगेटिव साइन है किंतु कॉस का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है? कुछ तो मिस्टेक है. बताओ क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिखने गया था. यहाँ पे माइनस प्लस है. आना है कि नहीं आना है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? कॉस का साइन x साइन 2x by 2. फिर माइनस साइन लगने के बाद अंदर साइन 2x by 2 बचेगा ना. x का तो 1 हो जाएगा. साइन 2x by 2 सो 1 by 2. और फिर साइन का इंटीग्रेशन करना है. तो साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? cos 2x by 2 आएगा और माइनस में आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो 1 by 4 cos 2x. So this one time more integration is required. इसको अभी सॉल्व करना है. फाइनल इसको कर देते हैं. ठीक. इजी है इंटीग्रेशन. ये ज्यादा टफ नहीं है. बिल्कुल सिंपल है.
ये 1/d है, पूरे का इंटीग्रेशन फिर होना है, कंप्लीट इंटीग्रेशन होना है। ओके, सो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन x बाई 2 sin 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x। ओके, सो टाइम क्या होगा? चलो इसका सॉल्व करना है, सब लोग सॉल्व करने बैठे हो तो 2 मिनट टाइम लगाओ और सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर। है ना, लेंदी आ जाता है ना, लास्ट में लॉन्ग प्रोसेस आ जाता है इसमें सॉल्व करने के लिए। हेलो, हाँ लंबा तो है, बता सॉल्व करो। अभी जहाँ तक किया वो सही है कि नहीं देख लेते हैं। ओके राइट है, गुड। शॉर्ट करके बताओ मेरे को, कम से कम कुछ लोग तो हैं कॉपी पेन लिए होंगे, क्यों नहीं? हेलो, हाँ कॉपी पेन, कुछ लोगों के हाथ में कॉपी पेन होगा। शॉर्ट करो, राइट है, जहां तक किया हो राइट है, मैं देख लिया हूं। ये क्या है? ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, यहां तक देख लिया हूं, है ना। 1/4 ds 1/d इंटीग्रेशन। सो ये 1/d मींस यहाँ इंटीग्रेशन होना है, यहाँ इंटीग्रेशन होना है, यहाँ इंटीग्रेशन होना है। सो ये माइनस साइन था, ये बाहर लिखा हूं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 दिस 1/2 पूरा बाहर भी आ सकता है 1/2। सो शॉर्ट करो, थोड़ा फटाफट लिखो, इसमें क्या आना है वैल्यू, सिंप्लीफाई हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 वहाँ है, 1/2 2 ले लेते हैं तो 1/2 बाहर आएगा, 4 आ जाएगा, 4 × 2x। ओके, नाउ माइनस साइन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन x sin 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। वैसे इसको इंटीग्रेट करोगे एक पार्ट ये आएगा और इसको भी इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट करो, एक पार्ट ये आ जाएगा, बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर लो पहले, ये वाला पार्ट, बिकॉज इसके अंदर ये है। माइनस साइन, इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या होना है इंटीग्रेशन, साइन 2x बाई 2 माइनस, see here x square sin 2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन 2x, x स्क्वायर के क्या होना है 2x होना है, इनटू sin 2x by 2। cos का इंटीग्रेशन जो होता है sin cos, cos sin प्लस में दिस dx। ओके, प्लस इंटीग्रेशन x sin x sin 2x नो sin 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ओके, अनिता बोल, माइक ऑफ करना भी है। अबे साउंड ऑफ करो, घर में कौन बात कर रहे हो भाई हैं? क्या होना है अभी? सी हियर माइनस
माइनस नाउ कोई सॉल्व कर रहे हो कि मैं ही करूं पूरा कंप्लीट? फाइनल लिख देता हूं। हेलो, मेरा क्लास का सिस्टम नहीं होता है। अरे बात मत करो, साउंड कम करो, बंद करो। जो सॉल्व कर रहे हो बताओ। हेलो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x प्लस इंटीग्रेशन x साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन x साइन 2x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos 2x dx। और सिंप्लीफाई होना है। सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? देखो दोनों सेम है ना, 2 टाइम्स हो गया। ओके, और यहां पर क्या होना है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x। ओके, वहां पर क्या आएगा वैल्यू? इस इंटीग्रेशन को कर ही देते हैं। यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होना है? यहां पर 1/2। वहां बताओ, सॉल्व नहीं कर रहे तो यहां बताओ 1/2 साइन cos 2x का इंटीग्रेशन। हेलो, sin 2x by sin 2x by 2। ये हो गया ना। अब देखो यहाँ sin 2x by 2, यहाँ पर sin 2x by sin 2x है, यहाँ sin 2x है। ओके, एक जगह कर लेता हूँ। देखो शॉर्ट हो जा रहा है ना, धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। e⁻²x, सो सी हियर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 इंटू साइन 2x। ये लास्ट पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को एक जगह कर दिया हूँ। साइन 2x कॉमन ले लिया हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 और ये दोनों सेम है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ x साइन 2x dx। आप देखो पहले से थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करो, इसको इंटीग्रेशन करो। 2 टाइम्स है ना साइन 2x, 2 टाइम्स। ओके, जो सिंप्लीफिकेशन करके तो छोड़ना है, जो पकड़ लिया पूरा करना है ना। तो जो अभी मैं देख दे रहा हूँ सही है कि नहीं। इधर 1/8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पर क्या है 8 सो 2 2 1 राइट है। ओके, अब तो बता दो छोटा करके क्या वैल्यू आएगा? 4e⁻²x। एग्जाम में इसीलिए आया 2-3 बार, है ना। सो सॉल्व करो, क्या आना है वैल्यू? अब इसमें से सॉल्व कर लेते, 4 बाहर कर देते, 4 को बाहर कर देते तो 4 बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ से 4 अगर बाहर आया तो क्या होगा? नीचे 2 × 4 से माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x। ये क्या किया? 1/4 बाहर किया, है ना, 1/4। तो यहां से भी 1/4 बाहर कर लिया तो 8 आया यहाँ पर 8। एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस x माइनस cos 2x बाई 2। फर्स्ट पार्ट बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। साइन का क्या हुआ? इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 एंड x नेगेटिव माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन करना है, x का 1 हो जाएगा, नेगेटिव इंटीग्रेशन 1 ऑफ। डायरेक्ट लिखना है, बताओ क्या होगा? डायरेक्ट लिखना है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आया, इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन भी लगा हुआ है, cos 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है। सो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, सो 4 हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। सो दिस इज
सिंप्लीफिकेशन, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को? हेलो, देख लो, हेलो, वैल्यू देखो, e टू द पावर 2x 1 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x, यहां पर क्या हो रहा है, ये से ये 8 है, 8 से इंटू हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा 4, यहां पर ये 2, सो सी हियर, सिंप्लीफाई करो, क्या होना है, प्लस नॉट माइनस, ये देखो माइनस साइन है, तो माइनस 4 x cos 2x, cos 2x 4 माइनस 4x cos 2x, और यहां पर 8 से इंटू हुआ तो 2 sin 2x, this is equals to what, e to the power 2x। अब ये sin 2x को फिर एक जगह कर देते हैं, sin 2x को फिर एक जगह कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये sin 2x, ये sin 2x है और ये sin 2x कॉमन ले लिए, 1 2 3 माइनस 2x स्क्वायर sin 2x माइनस 4x cos 2x, so this is pi। ओके, अब मिला के देखते हैं आंसर, 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x cos 2x माइनस 4x cos 2x। ओके, सो हुआ सॉल्व। हेलो, क्यों, हेलो, यस सर, सॉल्व कर रहे थे अभी, पर देख रहे थे बस? यस सर, बिकॉज करना चाहिए ना, ये तभी तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए तो बता रहे हैं। तो ये हो गया पीआई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, देखो कितना लंबा चौड़ा था, छोटा हो गया, सो दिस इज पीआई। दस कंप्लीट सॉल्यूशन, दस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या लिखना है, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, वो सी एफ है, ये देखो, दैट इज y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x प्लस pi, कंप्लीट pi लिखना है, e टू द पावर 2x एंड ये जो भी है ब्रैकेट में, है ना, 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x cos 2x, दिस इज फाइनल आंसर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो दो कांस्टेंट होना था, ये दो कांस्टेंट है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी साथ में लिखना है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। क्लियर है? तो आज क्लोज करें यहां पर ना। हेलो, यस सर, ओके, तो ये हो गया 11 क्वेश्चन अप टू, सो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये स्टेप समझ में आ गए, ये जो इजी वाला स्टेप है ना, पीआई निकालने का स्टेप है, और 4 टेक्निक्स आर देयर, या तो तीनों मिक्स था, कई कई तीनों प्लस माइनस में भी रहता है। सो असाइनमेंट भेजूंगा, जितने क्वेश्चन का ना वो क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस में कर लेना है ना। सो क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग।